And this is the 17th session on Newton's laws of motion. Okay, this is in continuation of the 16th video. So in this video I'll take up a numerical problem on application of Newton's second law from a rotating non-inertial reference frame. This question I'll discuss. It was asked in JEE Advanced 2016. Okay, this was asked in the JEE Advanced question 2016. It was asked. Okay, fine. So this question was asked in JEE Advanced 2016. So this question was on Lind comprehension type. So I'll not write the entire. When in JEE Advanced, when questions are asked in Lind comprehension type, they first give a small introduction of the topic, and then they give the problem, and then you have to solve the various parts of the question. So that introductory part will not remove it. Okay, I'll just write down the question, and two parts of the question are there. I'll solve both of them. Okay, so first I'll write down the question. Okay, see, question is this. Question is, consider a circular disc of radius r rotating in its own horizontal plane about a fixed vertical axis through its center C. At a constant angular speed omega. Constant angular speed omega. In counterclockwise and anti-clockwise sense, as seen from above. All right. There is a smooth straight slot passing through its center C. Passing through its center C. The slot coincides with the positive x-axis. Okay. With the positive x-axis. And y-axis is in the plane of the slot. In the plane of the slot. Y-axis is in the plane of the slot. And z-axis is vertically upward. Okay, fine. At time 0, a small block of mass m
a small block of mass m is gently placed in the slot at a point whose PV meaning position vector r by 2 I hat and is constrained to move along the slot. Okay, now in this problem two things we have to ask. This I'll grab it. Okay, fine. First is find first distance r of the block from center at time small t seconds later. Of block at time t. This I have already mentioned that the center C of the disk coincides with the origin of the coordinate system. And second thing we have to ask to find the net normal force on the block due to the slot in vector notation. Net normal reaction on the block due to the slot at time t greater than 0 in IJK notation. I hat, J hat, K hat notation. Okay. See, in the original question of 2016, answers do not ask directly to find. There are 4 options in each part of the question, and you have to tick mark the correct option. So I have just removed that thing. I just whatever thing we have to ask has been asked. I write down that question here itself, and then solve it. Okay. So I removed the options. Okay. I just arrive at those correct options, but I have not mentioned those options as was done in the paper, question paper. All right. So now first what we do, इसका हम पहले टॉप व्यू बनाते हैं, ठीक है ना. We'll draw the top view. Fine. सिचुएशन का टॉप व्यू हम बनाते हैं. देखिए ये आपका रोटेटिंग डिस्क हो गया जो एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा है कांस्टेंट ओमेगा से. ये सेंटर सी ऑफ डिस्क है, ये इसका रेडियस आर है. सेंटर सी जो ऑरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम है. स्लॉट जो है सो मतलब कि एक्स एक्सिस से ओवरलैप करता है. अच्छा, कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ डिस्क में फिक्स्ड है, ग्राउंड में फिक्स नहीं है. इट इज फिक्स टू द डिस्क. तो सपोज कीजिए टाइम 0 पर आपका स्लॉट कुछ ऐसे था. टाइम 0 लाइक दिस. ये टाइम 0 का स्लॉट है. ओके. तो एक मिनट, जस्ट इसको ठीक कर रहे हैं. मान लीजिए कि टाइम 0 का स्लॉट ऐसे कुछ था. मान लीजिए इनिशियल टाइम ये स्लॉट था मेरा टाइम 0 पर. स्लॉट काटा हुआ जो सेंटर से पास करता है. अब ये घूम रहा है ऐसे. अच्छा, एक्स एक्सिस हमेशा स्लॉट से ओवरलैप करता है. ये तो मेंशन कर देंगे कि जो एक्स एक्सिस है वो डिस्क में फिक्स्ड है, वो स्लॉट के साथ साथ घूमेगा. किसी टाइम इंस्टेंट टी मान लेते हैं स्लॉट ऐसे आ गया. देखिए ये स्लॉट हो गया टी टाइम पे स्लॉट हो गया. एक्स एक्सिस हमेशा स्लॉट से ओवरलैप करता है जैसा मेंशन किया गया क्वेश्चन में. ये मेरा एक्स एक्सिस हो गया. देखिए ये जो एक्स एक्सिस है इट इज अलोंग द स्लॉट. ये जो वाई एक्सिस है
वो नॉर्मल टू एक्स एक्सिस है इन द प्लेन ऑफ रोटेशन, जैसे कि मेंशन किया गया है। जेड एक्सिस में ऐसे होगा। अच्छा, ये स्लॉट में टाइम 0 पर हम क्या किए हैं, ये यहाँ पे वो ब्लॉक रख दिए थे, देखिए इसे टाइम 0 ब्लॉक ऐसे था। टाइम 0 पर सेंटर से उसका डिस्टेंस था r/2 और टाइम 0 पर एक्स एक्सिस यहाँ पर था। ये एक्स एक्सिस हो गया एट व्हाट टाइम t, और ये एक्स एक्सिस हो गया एट व्हाट टाइम t बराबर 0 पर। t बराबर 0 पर एक्स एक्सिस ये था, t बराबर t पर एक्स एक्सिस ऐसे हो गया। ठीक है, ये यहाँ ब्लॉक को जेंटली प्लेस किया है स्लॉट में टाइम 0 पर एट अ डिस्टेंस ऑफ r/2 फ्रॉम इट सेंटर c, क्योंकि उसका पोजीशन वेक्टर r/2 i हैट बोला है। देखिए लिखा होगा मेंशन में r/2 i हैट। तो इनिशियली टाइम 0 पर i हैट ऐसे है, तो r/2 i हैट ऐसे हो गया। ये यहाँ प्लेस था। जब यहाँ प्लेस होगा तब क्या होगा कि ये आगे बढ़ना शुरू करेगा, है ना, मूव करेगा। तो टी टाइम मानते हैं ये ब्लॉक यहाँ आ गया। देखिए टी टाइम में ब्लॉक यहाँ आ गया। ठीक है, अब हमको बताना है टी टाइम पर, सॉरी टी टाइम पर ये यहाँ पहुँच गया, ब्लॉक यहाँ पहुँच गया टी टाइम पर। उस समय उसका उस डिस्टेंस आर हो गया। ये आर हमको बताना है कितना होगा टी के टर्म्स में। ठीक है ना, जैसे स्पेसिफाई कि आर कितना होगा। पहला पार्ट वही क्वेश्चन का था, और दूसरा वही नेट डाउन रिएक्शन पता करना है ब्लॉक पर स्लॉट की वजह से पता करना है। ठीक है, तो देखिए अब ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मेरे पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन तो ये है कि स्लॉट को हम, ये ब्लॉक को न्यूटन सेकंड लॉ लगाएं ग्राउंड के फ्रेम में, या न्यूटन सेकंड लॉ लगा दें रोटेटिंग डिस्क के फ्रेम में। दोनों में से कोई भी ऑप्शन लेकर हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे डिस्क के फ्रेम में। ओके, ठीक है, एक बार जान लीजिए जो डिस्क जो है एक रोटेटिंग नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम है। इट्स अ रोटेटिंग नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम, जिसको डिनोट करेंगे एन से। तो हम लोग क्या करेंगे, टी टाइम पर इस ब्लॉक को न्यूटन सेकंड लगाएंगे, न्यूटन सेकंड लॉ लगाएंगे डिस्क के फ्रेम में, जो एक रोटेटिंग नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम है। सो अप्लाइंग Newton's second law to block with respect to disk at time t, जो कि greater than 0 है। Applying Newton's second law to the block with respect to disk at time t which is more than 0। ठीक है, अच्छा एक बात बोलेंगे, देखिए ये 2016 में पूछा गया था, IIT गुवाहाटी सेट किया था। हम इसको, जब हम बहुत दिन से रांची में पढ़ा रहे हैं फिजिक्स, है ना, ऑफलाइन बहुत दिन से पढ़ा रहे हैं, 20-22 साल ज़्यादा हो गया है, 25 साल से ज़्यादा हो गया पढ़ाते हुए। तो हम क्लास में 2016 पहले भी क्लास में, ऑफलाइन क्लास में इसको डिस्कस किया करते थे। तो लोग बोलते थे अरे ये सब क्यों बताते हो, ये सब थोड़े आता है, जो खाली ट्रांसलेटिंग फ्रेम का, नॉन इनर्शियल फ्रेम का क्वेश्चन आता है, रोटेटिंग का थोड़े आता है। और देखिए आ गया 2016 में आ गया ये क्वेश्चन। तो ये कहना कि नहीं आता है तो गलत हो गया ना। ये थोड़े कि आज तक एडवांस में जो क्वेश्चन नहीं है आगे भी नहीं आएगा, ऐसा है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। पॉसिबल है कि आज तक कभी नहीं आया, अगले साल कुछ न्यू टाइप का क्वेश्चन डाल दिया। इसलिए ये कहना गलत है कि एडवांस में खाली प्रीवियस ईयर पूछा है वही पूछेगा, ये कहना गलत है। आपको एडवांस के लिए कोई लिमिट नहीं है, आप जितना हिसाब बनाइए उतना अच्छा रहेगा आपके लिए, इसलिए जानना है इसको। ऐसे भी हम आपको एम्फेसाइज करते आ रहे हैं प्रीवियस वीडियोज़ में कि अगर आप जेईई एडवांस की तैयारी कर रहे हैं तो लॉज ऑफ मोशन को आपको खास करके इस चैप्टर को एकदम डिटेल में पढ़ना होगा, इवन दो सिलेबस के बाहर जाइए फिर भी, क्योंकि इसमें देखिए इतना फंडामेंटल कंसेप्ट है ना। अगर चाहे कंसेप्ट नहीं क्लियर होगा, आधा जानिएगा आधा नहीं जानिएगा, तो बहुत खतरनाक है प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। ये चूँकि इतना बेसिक फंडामेंटल चैप्टर है, इसलिए पूरा जानना है। इवन तो आप सिलेबस से बाहर भी थोड़ा जाइए तो देयर इज नो हार्म, समझे। तो इसको हम सॉल्व करें, तो हम बहुत दिन से रांची में पढ़ाते हैं, इसको हम देते गए हैं। लोग बोलते थे 2016 पहले भी बहुत साल पूछे थे, इस क्लास में डिस्कस करते थे इस टाइप का क्वेश्चन। लोग बोलते थे इसको कहाँ आता है, आ गया देखिए, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, बोल रहे हैं बात में। तो चलिए, अच्छा अब हम लोग नॉन इनर्शियल फ्रेम में, डिस्क के फ्रेम में लगा रहे हैं इसको न्यूटन सेकंड लॉ। तो उसका हमको फ्री बॉडी बनाना होगा डिस्क का, ये सॉरी ब्लॉक का, डिस्क के फ्रेम में। पहले हम क्या करते हैं, न्यूटन सेकंड लॉ इक्वेशन लिखते हैं ब्लॉक को डिस्क के फ्रेम में। अच्छा, इनर्शियल फ्रेम के बदले मेरा एज यूजुअल ग्राउंड फ्रेम है, और नॉन इनर्शियल फ्रेम के बदले डिस्क फ्रेम है, जिसको डी से डिनोट कर रहे हैं, डी। नॉन इनर्शियल फ्रेम को डी से डिनोट किए और इनर्शियल फ्रेम को जी से डिनोट किए, ठीक है। जी फॉर ग्राउंड, डी फॉर डिस्क, ओके। तो पहले हम न्यूटन सेकंड लॉ इक्वेशन का वेक्टर इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है। ब्लॉक को हम डिनोट कर रहे हैं किससे, पी से, एम ए पी डी। एम इज द मास ऑफ ब्लॉक, ए पी डी क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू डिस्क, वही ए पी डी। दैट इज इक्वल टू नेट रियल फोर्स ऑन द डिस्क, ब्लॉक सॉरी,
नेट रियल फोर्स, वेक्टर सम ऑफ ऑल द रियल फोर्सेज ऑन द ब्लॉक प्लस सूडो फोर्सेज। अब ये डिस्क फ्रेम देखिए, रोटेटिंग नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम है। प्रीवियस वीडियोज़ में हम पूरा आपको बताते आए हैं पूरा कि जब भी रोटेटिंग नॉन इनर्शियल फ्रेम से किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को हम ऑब्जर्व करेंगे तो रियल फोर्स के अलावा उसमें इन जनरल 4 को सूडो फोर्स और एक्ट करेगा। तो चारों सूडो फोर्स हम लिख देते हैं, ठीक है। तो पहला सूडो फोर्स ये हो जाएगा -MAAG, फर्स्ट सूडो फोर्स। इसमें कैपिटल ए क्या है? कैपिटल ए डिस्क का वो लोकेशन है जहाँ से हम पी को फ्री का फ्री बॉडी बना रहे हैं। यहाँ पर हम लोग सी को ए लेंगे, ये बात हम समझा दी आपको। ये डिस्क का जो सेंटर सी है उसी को पॉइंट ए लेंगे हम। डिस्क का जो सेंटर सी है उसी को हम पॉइंट ए लेंगे, दैट विल टेकन टू बी द पॉइंट ए। ये फर्स्ट सूडो फोर्स हो गया। अच्छा, सेकंड सूडो फोर्स होगा -M बीटा क्रॉस RPA। बीटा एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ डिस्क विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है जो कि 0 होगा, क्या ओमेगा कांस्टेंट है। बीटा डी ओमेगा बाई डी टी होता है, ओमेगा कांस्टेंट है तो डी ओमेगा बाई डी टी बीटा 0 हो जाएगा। बीटा 0 के लिए सूडो फोर्स भी चला गया। RP आपका वेक्टर है A to P यानी C to P। एनीवे बीटा 0 बातें खत्म, उसको लिखने की जरूरत नहीं। अच्छा, थर्ड सूडो फोर्स कॉरियोलिस फोर्स होगा। कॉरियोलिस फोर्स को क्या लिखेंगे? -2M ओमेगा क्रॉस VPD। इसे VPD क्या चीज़ है बताइए? वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू डिस्क एट सर्टेन टाइम इंस्टेंट t। ओके, ये कॉरियोलिस फोर्स हो गया। और थर्ड है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, -M ओमेगा क्रॉस क्या RPA। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो गया। कुल मिला के ये सब फोर्सेस, 4 सूडो फोर्स और एक रियल फोर्स, सबका वेक्टर सम, यही नेट इक्वेशन ऑफ मोशन होगा, ठीक है। अच्छा, इसको मिटा देते हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए, अब हम क्या करते हैं ना, इसका फ्री बॉडी कंस्ट्रक्ट करते हैं डिस्क का, ब्लॉक का, स्लॉट के फ्रेम में, डिस्क के फ्रेम में सॉरी, ठीक है। तो इसको 3D व्यू बनाते हैं। देखिए जैसे ये देखिए, स्लॉट को थोड़ा 3D दिखा रहे हैं, स्लॉट से दिखा रहे हैं। ये स्लॉट हो गया एट व्हाट टाइम? T। ब्लॉक यहाँ पर है, देखिए, ठीक है। इसका फ्री बॉडी हम कंस्ट्रक्ट करते हैं डिस्क के फ्रेम में, फ्री बॉडी बनाते हैं इसका। एक तो उसका वेट हो जाएगा mg, ठीक है। और भी रियल फोर्सेस में आएगा। समटाइम देखिए पता नहीं रहता है कि कौन कौन सा रियल फोर्स और एक्ट करेगा। कभी को ऑब्वियस रहता है, कभी को ऑब्वियस नहीं रहता है। समझ रहे हैं बात? समटाइम्स इट इज ऑब्वियस कि कौन सा सूडो फोर्स एक्ट करे, कौन सा रियल फोर्स करेगा, एक्ट नहीं करेगा, वी डोंट नो। समटाइम्स होता है प्रॉब्लम ऐसा। इनकेस आपको क्लियर नहीं तो छोड़ के आगे बढ़ जाइए, जस्ट प्रोसीड अहेड, ठीक है। अभी और बाकी हम और भी रियल फोर्स एक्ट करेगा इस पर, इस डिस्क की वजह से, मैंने कॉन्टैक्ट फोर्स स्लॉट लगाएगा। अभी उसको नहीं दिखाते हैं, उस आगे प्रोविजनली आगे दिखाएंगे, ठीक है। अब ये सूडो फोर्स दिखाते हैं एक एक करके। ये फर्स्ट सूडो फोर्स है -MAAG। अब ये क्या है? डिस्क का सेंटर सी है। डिस्क का सेंटर सी ग्राउंड G यानी इनर्शियल फ्रेम में फिक्स्ड है। ये AG 0 हो जाएगा। तो फर्स्ट सूडो फोर्स भी वैनिश कर गया, इसको दिखाने की जरूरत नहीं है। ये तो पहले बोल चुके हैं, ये भी 0 है, कहीं बीटा 0 है, इसको दिखाने की जरूरत नहीं है। अब ये कॉरियोलिस फोर्स है, देखिए। अब देखिए T टाइम पर VPD क्या है? VPD इज द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू डिस्क एट टाइम T। VPD का डायरेक्शन किधर है? इधर है, बोलिए है कि नहीं? -2M ओमेगा क्रॉस VPD। इस ओमेगा फैक्टर को कैसे लिखेंगे? ओमेगा फैक्टर लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ओमेगा इनटू यूनिट फैक्टर अलोंग डायरेक्शन ऑफ ओमेगा। बट देखिए ओमेगा एंटी क्लॉकवाइज, इसका डायरेक्शन आउटवर्ड होगा राइट हैंड थंब रूल से, बट इस ये डायरेक्शन z एक्सिस का डायरेक्शन है। यूनिट फैक्टर अलोंग डायरेक्शन ऑफ ओमेगा k हैट हो जाएगा। वेक्टर ओमेगा को लिखेंगे ओमेगा इनटू क्या? k हैट, ऐसा लिखेंगे, क्लियर है। और VPD मेरा किधर है? x एक्सिस के अलोंग है। ये जो थर्ड ये कॉरियोलिस फोर्स है उसको कैसे लिखेंगे? -2M ओमेगा को लिखेंगे ओमेगा k हैट, और VPD को लिखेंगे VPD का मैग्नीट्यूड VPD इंटू यूनिट वेक्टर अलोंग VPD। VPD का यूनिट वेक्टर x के अलोंग है, I हैट हो जाएगा। ये देखिए हो जाएगा -2M ओमेगा k क्रॉस VPD I हैट, ये हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ लिखता है, देखिए जगह खत्म हो गया, यहाँ लिख रहे हैं, आरो बना दिए हैं। ओमेगा VPD k हैट क्रॉस I हैट क्या होगा? J हैट। तो -2 ओमेगा VPD J हैट हो गया, देखिए ये J हैट हो गया।
तो ये आपका इसमें वाई एक्सिस किधर है, वाई एक्सिस इधर है मेरा, तो कॉर्डिनेट फोर्स इधर लगेगा वाई एक्सिस के ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पर इसको ऐसे दिखाते हैं थर्ड, ये देखिए ऐसे ये कॉर्डिनेट फोर्स ऐसे लगेगा। यहाँ पर हम देखेंगे देखिए ये एक्स एक्सिस एक 3D व्यू बना रहा है इसका, ये वाई एक्सिस हो गया। इस पर जो थर्ड सूडो फोर्स कॉर्डिनेट फोर्स लगेगा वो वाई के ऑपोजिट इधर लगेगा, देखिए ऐसे 2m ओमेगा VPD नेगेटिव वाई एक्सिस के लॉन्ग, वाई ऐसे है 3D व्यू, वाई ऐसा दिखेगा, एक्स ऐसा दिखेगा। ये ब्लॉक यहाँ पर है इसका, और सेंटर से डिस्टेंस r है जो पता करना है हमको, और सूडो फोर्स इसमें इधर लग रहा है 2m ओमेगा VPD कॉर्डिनेट फोर्स, ठीक है। और फाइनली बचता है ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स -m ओमेगा क्रॉस RPA। तो वो तो आपका वही होगा, ये जो फोर्स सूडो फोर्स है ये वाला कॉर्डिनेट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स -m ओमेगा क्रॉस RPA। ये लिखेंगे कैसे, उसको लिखेंगे m ओमेगा स्क्वायर r इंटू ई हैट, फिर r क्या है, डिस्टेंस ऑफ ब्लॉक फ्रॉम पॉइंट ए, पॉइंट ए कौन सा है, सेंटर है, तो r मेरा ये डिस्टेंस r हो गया, और ई हैट क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस जो कि आई हैट हो जाएगा। इसको लिखेंगे m ओमेगा स्क्वायर r इंटू आई हैट लिखेंगे। इसको डायग्राम में कैसे दिखाएंगे, ऐसे दिखाएंगे, m ओमेगा स्क्वायर r हो गया। ये सारा सूडो फोर्स तो हम दिखा चुके हैं, रियल फोर्स को दिखाए हैं, अभी नॉर्मल फोर्सेस हम शो नहीं किए हैं, ठीक है ना, इट हैज टू बी शोन। अच्छा अभी सब मिटा देते हैं, ठीक है। ठीक है, अब देखिए इस ब्लॉक को हम न्यूटन से लगाते हैं एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में लगाते हैं, किसके फ्रेम में, डिस्क के फ्रेम में। इसको न्यूटन सेकंड में लगाते हैं ब्लॉक को अलोंग एक्स एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू डिस्क फ्रेम। तो क्या स्टेटमेंट लिखेंगे, MAPDX, APDX मीनिंग व्हाट, x component of acceleration p, acceleration of block p with respect to disk at time t, वो होगा नेट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस। अब देखिए ये सब फोर्स का कंपोनेंट तो हो नहीं सकता है, mg तो नेगेटिव जेड एक्सिस के लॉन्ग है, ये वाला नेगेटिव वाई एक्सिस के लॉन्ग, इसका एक्स के लॉन्ग कोई कंपोनेंट नहीं है। इस डायरेक्शन में और कोई रियल फोर्स पॉसिबल नहीं, फ्रिक्शन भी नहीं है क्योंकि स्मूथ है स्लॉट। इस डायरेक्शन खाली एक ही फोर्स है ओमेगा स्क्वायर आर। ये फर्स्ट इक्वेशन एक और आ गया, इसमें m देख लीजिए कैंसिल हो जाएगा। अच्छा APDX को क्या लिखेंगे, अब देखिए डिस्क के फ्रेम में ये जो ऑब्जेक्ट है स्लॉट के लॉन्ग सीधा जा रहा है एक्स एक्सिस के लॉन्ग, तो किसी ये डिस्क के फ्रेम में सीधा जा रहा है एक्स एक्सिस के लॉन्ग, तो APDX को क्या लिखेंगे, dVPD बाई dt, ये लिखेंगे एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, दैट इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर। और dVPD बाई dt को क्या लिखेंगे, उसको सिंपली लिखेंगे dr बाई dt लिखेंगे। क्या है, डिस्क के फ्रेम में ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है एक्स एक्सिस के लॉन्ग, टी टाइम पर उसका ऑरिजिन से डिस्टेंस r है, तो फॉर अ पॉइंट मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस उसका वेलोसिटी dx बाई dt होगा, x के बदले r लिखेंगे, ये भी बता दिए। ठीक है, अभी हम इसको न्यूटन सेकंड में लगाए हैं डिस्क के फ्रेम में एक्स एक्सिस के लॉन्ग, अब इसको न्यूटन सेकंड में लगाएंगे हम वाई एक्सिस के लॉन्ग लगाएंगे डिस्क के फ्रेम में, इसे मिटा देते हैं, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, ये मेरा सेकंड इक्वेशन हो गया। देखिए इसको डाल देंगे इसमें, VPD को dr बाई dt लिखेंगे, तो d बाई dt ऑफ dr बाई dt क्या हो जाएगा, d2r बाई dt2 हो जाएगा, जो कि ओमेगा स्क्वायर आर होगा। देखिए कि क्वेश्चन आ चुका है, सॉल्व भी करेंगे बाद में भी। तो अब इसको क्या करते हैं, न्यूटन सेकंड में लगाते हैं डिस्क के फ्रेम में वाई एक्सिस के लॉन्ग, तो क्या लिखेंगे m टाइम्स APDY इक्वल टू नेट फोर्स ऑन द डिस्क अलोंग वाई डायरेक्शन। तो देखिए वाई डायरेक्शन के लॉन्ग इसका तो कंपोनेंट होगा नहीं, एक्स के लॉन्ग है, mg नीचे है, z के लॉन्ग माइनस z के लॉन्ग, उसका y के लॉन्ग कंपोनेंट हो नहीं सकता है, राइट एंगल पर है। ये जो देख रहे हैं 2m ओमेगा VPD वाई एक्सिस के ऑपोजिट है, f डबल डैश का रोल प्ले करेगा, तो माइनस लिखेंगे 2m ओमेगा VPD लिखेंगे। अब देखिए डिस्क के फ्रेम में ब्लॉक का y कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0 होगा, कारण डिस्क के फ्रेम में ऑब्जेक्ट हमेशा एक्स एक्सिस के लॉन्ग जा रहा है, डिस्क के फ्रेम में y एक्सिस के लॉन्ग से 0 एक्सेलरेशन होगा ऑलवेज।
इट ओनली हैज एन एक्सेलरेशन ऑन एक्स डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू द डिस्क फ्रेम, वाई डायरेक्शन में उसका जीरो एक्सेलरेशन होगा तो ये जीरो हो गया, m इंटू जीरो भी जीरो हो गया। अब ये जीरो है देखिए, माइनस ये हो गया, पर देखियो n तो नॉन जीरो है, ओमेगा भी नॉन जीरो है, VPD जो है सो वो भी नॉन जीरो है, बट यहाँ तो जीरो है, तो ये जीरो होने के लिए एक टर्म यहाँ भी आना चाहिए, तो वहाँ पर एक और फोर्स होना चाहिए। अब या तो रियल फोर्स होगा, सूडो फोर्स होगा, दोनों में से कोई होगा। रियल फोर्स सूडो फोर्स तो हो नहीं सकता है, सूडो फोर्स तो दिखा चुके हैं, इसमें एक रियल फोर्स और होना चाहिए जो इसको नलीफाई करेगा ताकि जीरो एक्सेलरेशन हो जाए वाई एक्सिस के लॉन्ग। अब वो कहाँ से आएगा, वो नॉर्मल फोर्स होगा। इस ऑब्जेक्ट पर वाई एक्सिस के लॉन्ग ये स्लॉट जो है एक नॉर्मल फोर्स N1 एक्सर्ट करेगा वाई एक्सिस के लॉन्ग, जो इसको कैंसिल आउट करेगा ताकि APDY जीरो हो जाए। यहाँ लिखेंगे N1 माइनस दिस, लिखेंगे ऐसा लिखेंगे, N1 को लिखेंगे 2m ओमेगा इंटू VPD। ये मेरा थर्ड इक्वेशन हो गया, देखिए हो गया ना। अब बचता है हमको न्यूटन सेकंड में लगाना, किस डायरेक्शन में, Z डायरेक्शन में। अच्छा एक बार देखिए, कहा हम शुरू में N1 नहीं दिखाए थे, शुरू में N1 नहीं दिखाया था क्या कि हमको पता नहीं था कि और कौन सा फोर्स लग रहा है, इसलिए वहाँ पर उस समय हम ब्लैंक छोड़ के आगे बढ़ गए। फिर हम क्या किए कि वाई डायरेक्शन को हम देखे कि एक कॉर्नलेस फोर्स लग रहा है और वाई डायरेक्शन को जीरो एक्सेलरेशन, तो उधर एक और फोर्स लगना चाहिए वाई के लॉन्ग, जिसको खत्म करेगा, इसको नॉर्मल फोर्स है। अब यहाँ नॉर्मल फोर्स हम दिखा दिए, शुरू में नहीं बनाए थे लेकिन अब बना दिए हैं, ठीक है, ऑलराइट। अच्छा इसको अब हम मिटा देते हैं, ठीक है। अच्छा अब इसको हम क्या करते हैं, न्यूटन सेकंड में लगाते हैं, किसके फ्रेम में, डिस्क के फ्रेम में लॉन्ग Z एक्सिस। तो क्या लिखेंगे, T टाइम पर MAPDY Z इज इक्वल टू नेट फोर्स अलॉन्ग Z डायरेक्शन। अब Z डायरेक्शन देखिए, इसका कोई कॉम्पोनेंट हो नहीं सकता है, इसका भी नहीं हो सकता है, राइट एंगल पर है। तो अब N1 जो लग रहा है वाई एक्सिस के लॉन्ग, उसका भी कॉम्पोनेंट नहीं होता है Z के लॉन्ग। mg लग रहा है नेगेटिव Z एक्सिस के लॉन्ग, F डबल डैश में आएगा माइनस mg। तो यहाँ देखिए अब Z डायरेक्शन में डिस्क के रेस्पेक्ट टू ब्लॉक का एक्सेलरेशन फिर से क्या होगा, जीरो, m इंटू जीरो क्या होगा, जीरो। अब जीरो है यहाँ तो mg लग रहा है, नॉन जीरो है, जीरो होने के लिए एक फोर्स और यहाँ होना चाहिए। अब वो सूडो फोर्स तो हो नहीं सकता है क्योंकि सूडो फोर्स हम सारा शो कर चुके हैं, एक रियल फोर्स ही होना चाहिए, इसको नॉर्मल फोर्स होना चाहिए N2 इन अपर डायरेक्शन, जो mg को खत्म कर देगा। अच्छा अभी जो F डबल डैश F डैश का बात की है, इसका अगर इसमें आपको डाउट है तो आप जो इसका शुरू का वीडियो है ना न्यूटन्स लॉ का, शुरू का पहला 2-3-4 वीडियो देखिए ना, उसमें मिल जाएगा सारा डिटेल, F डैश क्या है, F डबल डैश क्या है, उसमें अगर जाइएगा तो सब कुछ आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो N2 कितना लिखाएगा, mg लिखाएगा, ये जीरो है तो N2 mg आ गया। तो नेट नॉर्मल फोर्स ऑन द ब्लॉक ड्यू टू द डिस्क या स्लॉट क्या लिखेंगे, एक N1 लग रहा है किसके अलॉन्ग, वाई एक्सिस के अलॉन्ग, और एक N2 लग रहा है किसके अलॉन्ग, अपवर्ड डायरेक्शन है Z एक्सिस के अलॉन्ग, N2 k हैट हो गया। अब N1 हमको कितना आया था, 2m ओमेगा VPD आया था, J हैट, N2 कितना आ गया, mg आ गया, k हैट। अब देखिए हमको पहला निकालना था, R निकालना था एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, और दूसरा n निकालना था एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो अगेन उसके लिए हमको पहले R पता करना है फंक्शन ऑफ टाइम, और VPD पता करना है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ताकि n एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हमको आ जाएगा, ठीक है, ऑलराइट। अब इसको मिटा देते हैं। तो अगर लगाएंगे इसको तो क्या लिखेंगे, देखिए ये क्वेश्चन में VPD क्या था, dr/dt था, बोले ना, और यहाँ पर ये d2r/dt2 होगा, यहाँ गलती से कैलकुलेशन मिस्टेक था, ठीक कर दिया उसको। तो क्या लिखेंगे, अभी हम लिखे था ना ये क्वेश्चन, इस चीज को इसमें डाल देंगे, यहाँ पर d2r/dt2 क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर r हो जाएगा। अब देखिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने तो आता नहीं होगा आप लोग को। अब ये कोई भी आप बुक देखिएगा ना, अंडर ग्रेजुएट लेवल का कोई भी मैथ्स का डिफरेंशियल इक्वेशन का किताब लीजिएगा, उसका सॉल्यूशन आराम से मिल जाता है, सेकंड ऑर्डर इक्वेशन है विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स, इट कैन बी सॉल्व्ड इजीली, समझे। अच्छा इसको सॉल्व कर दिखाई देता है, समझे ना। इसको लिखेंगे d2r/dt2 माइनस ओमेगा स्क्वायर r इज जीरो। सो इसका हमको r पता करना है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, क्या होगा r, व्हाट इज r एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, दिस वी हैव टू फाइंड आउट। तो इसको सॉल्व करने का स्टैंडर्ड प्रोसीजर ये है, लेट r बी e पावर लैम्डा t से, ओके फाइन।
तो dr/dt को क्या बोलेंगे, लैम्डा ई पावर लैम्डा टी लिखेंगे। फिर से डेरिवेट करते हैं, इसमें लैम्डा कांस्टेंट है, फिर डेरिवेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, लैम्डा स्क्वायर ई पावर लैम्डा टी हो जाएगा। इसको डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में, फिर से ये आ जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। इसको मिटा देते हैं ऊपर, ठीक है, फाइन। अब इसको हम क्या करते हैं, डाल देते हैं इसको इसमें और इसको डाल देते हैं। तो क्या लिखेंगे देखिए, d2r/dt2, हाँ इसको लिखेंगे क्या, इसको लिखेंगे लैम्डा स्क्वायर ई पावर लैम्डा टी, लैम्डा स्क्वायर ई पावर लैम्डा टी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर इज 0, लैम्डा स्क्वायर ई पावर लैम्डा टी माइनस ओमेगा स्क्वायर ई पावर लैम्डा टी इज 0, बट ई पावर लैम्डा टी कैन नॉट बी 0 फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ टी, यानी कि दिस ओनली वे इट कैन बी इज लैम्डा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर 0 होना चाहिए, लैम्डा इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा होना चाहिए। ओके फाइन, अब इसको मिटाते हैं, ठीक है। अब क्या इसका जनरल सॉल्यूशन ऐसे लिखाएगा, c1 ई पावर ओमेगा टी c2 ई पावर माइनस ओमेगा टी, c1 c2 कॉन्स्टेंट्स है। अब हमको r जानने के लिए c1 c2 जानना होगा, क्या होगा, टाइम 0 पर r का वैल्यू क्या था, R/2 था, गिवन है प्रॉब्लम में। तो c1 c2 जानने के लिए दो कंडीशन है, दो इक्वेशन चाहिए हमको, दो अननोन है, दो कंडीशन चाहिए। टाइम 0 पर आपको दिया हुआ है कि r कितना है, R/2 हो गया, t को 0 लिखेंगे, r को R/2 कर देंगे, R/2, c1 ई पावर ओमेगा इंटू 0, c2 ई पावर माइनस ओमेगा इंटू 0, ई पावर ओमेगा इंटू 0 क्या होगा, 1 हो जाएगा, तो c1 प्लस ये भी 1 हो जाएगा, ये रकम 1 हो गया, तो c1 प्लस c2 R/2 हो गया। फिर अभी हमको एक कंडीशन और चाहिए। अब देखिए टाइम 0 पर जो ब्लॉक को हम रखे थे स्लॉट में, जेंटली प्लेस किए थे, यानी इनिशियली डिस्क के फ्रेम में ब्लॉक का स्पीड क्या था, 0 था। सो एट t बराबर 0 VPD इज व्हाट, 0, बोलिए है कि नहीं। तो इसको मिटाते हैं, ठीक है, यहाँ इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है, ऑलराइट। ये देखिए इसमें पहले हम dr/dt का एक्सप्रेशन निकालते हैं। t टाइम पर VPD को लिखेंगे क्या, dr/dt लिखेंगे, डेरिवेट करेंगे, इसको कितना लिखेंगे, c1 ओमेगा ई पावर ओमेगा टी माइनस c2 ई पावर माइनस ओमेगा टी हो गया। टाइम 0 को VPD 0 सेट करेंगे, ई पावर 0 माइनस c2 ओमेगा ई पावर माइनस 0, ई पावर 0 1 हो गया, c1 ओमेगा ये भी 1 हो गया, माइनस c2 ओमेगा, बट ओमेगा नॉन जीरो है, c1 बराबर c2 हो गया, एंड c1 का c2 R/2 है, तो दोनों को सॉल्व करेंगे तो c1 c2 कितना आ जाएगा, R/4 आएगा, आ गया ना। अब क्या करेंगे, c1 c2 को डाल देंगे, इसमें पहला आंसर आ गया हमको, स्मॉल r एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ गया, ठीक है, बिठा देते हैं इसको। यहाँ पर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बताइए, c1 को लिखेंगे, c1 से R/4 लिख देंगे, यहाँ पर R/4 ई पावर ओमेगा टी ई पावर माइनस ओमेगा टी, R/4 ई पावर ओमेगा टी प्लस ई पावर माइनस ओमेगा टी, ये जाके इसका रिक्वायर्ड आंसर हो गया फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन का। तो इस चार ऑप्शन, यही ऑप्शन एक ही, ये भी एक ऑप्शन था, इसको जो सही सॉल्व करेगा ये टिक मार्क करेगा उसको, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, सब क्लियर हो गया। अच्छा बचता है नेट नॉर्मल फोर्स निकालना। नेट नॉर्मल फोर्स इन दोनों का वेक्टर हमें क्लियर पता ही है, खाली VPD निकाल देना है t टाइम पर और उसमें डाल देंगे तो आ जाएगा मेरा, ठीक है। इसको मिटा देते हैं ऊपर। ये देखिए तो एन जाने के लिए VPD चाहिए t टाइम पर। अभी हम देखिए VPD मेरा क्या था, dr/dt था ना, इसको डेरिवेट कर देते हैं, आ जाएगा VPD।
तो VPD कितना लिखाएगा, देखिए ना एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, देखिए VPD का ये एक्सप्रेशन है, देखिए टी टाइम पर क्या लिखेंगे, इसमें ओमेगा कॉमन आ गया, C1 C2 दोनों कितना है, R/4 है, e पावर ओमेगा टी माइनस क्या, e पावर माइनस ओमेगा टी हो गया। VPD आगे देखिए, आ गया ना, आया कि नहीं बोलिए, आ गया। VPD इतना आ गया, ये VPD था, बस C1 C2 बाहर कर दिया, R/4 है, ओमेगा भी कॉमन आ गया। अब डाल दीजिए इसमें तो नेट नॉर्मल फोर्स भी आ जाएगा। नेट नॉर्मल फोर्स को क्या लिखेंगे, 2m ओमेगा VPD ओमेगा R/4 ओमेगा टी माइनस e पावर माइनस ओमेगा टी इंटू जे हेड, देखिए यहाँ पर जे हेड है, प्लस एन जी इंटू के हेड हो गया ना, इसको मिटा देते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे तो नेट नॉर्मल फोर्स कितना है, आईजे नोटेशन में, आईजे के नोटेशन, आई वाला टर्म नहीं है, खाली जे के नोटेशन है, लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, m ओमेगा स्क्वायर R/2 e पावर ओमेगा टी माइनस e पावर माइनस ओमेगा टी जे हैट प्लस mg इंटू के हैट। नेट नॉर्मल फोर्स ऑन द ब्लॉक ड्यू टू द स्लॉट हो जाएगा टाइम टी इन वेक्टर नोटेशन, यही जाके सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया। दिस द आंसर टू सेकंड पार्ट ऑफ द गिवन क्वेश्चन, समझ गए, फिर हो गया ना। तो देखिए 2016 में पूछा था, IIT गुवाहाटी सेट किया था, ये क्वेश्चन पूछ दिया था, 60 2 पार्ट था क्वेश्चन का, जो 2 आंसर सॉल्व किए उसको, उस वाले चर्चा नंबर था 8 नंबर का था, मतलब ये रैंक डिसाइडिंग क्वेश्चन था, जान लीजिए। और इसको बहुत कम स्टूडेंट सॉल्व किया होगा, जो एडवांस लिखा होगा 2016 में ना, बहुत कम ही क्वेश्चन इसको स्टूडेंट इसको सॉल्व कर पाया होगा। रैंक डिसाइडिंग क्वेश्चन है, जो भी सॉल्व किया होगा रैंक शूट अप करेगा होगा बहुत। और एक क्वेश्चन ठीक से बनेगा, 8 नंबर का गेन करेगा, रैंक उसका कम से कम 3-4 हज़ार रैंक ऊपर चला जाएगा एकदम, ये बता दिए पूरा आपको, ठीक है। इसको ठीक से गो थ्रू कीजिए, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, और है ना, हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि हम लोग न्यूटन सेकंड लॉ का एप्लीकेशन लेंगे एज फ्रॉम सीन फ्रॉम सम ट्रांसलेटिंग NIRF। किसी ट्रांसलेटिंग NIRF में हम लोग न्यूटन लॉ इक्वेशन का ये सेटअप करेंगे, ठीक है। इसमें क्लोज कर देते हैं, फाइन, ऑलराइट।